ગુડ ઇવનિંગ. મજામાં? શું આજે એલઆર ભણી લીધું તમે લોકો એમ? શું વાત છે? અચ્છા, આઈ ટેલ યુ સમથિંગ યાર. મેં તમને પહેલા લેક્ચરમાં આપણે એક વસ્તુ કીધી હતી, ખબર છે કે આપણે સીએ બનીએ ને એની પહેલાં એક સારા માણસ બનવું વધારે જરૂરત છે. યાદ છે? નહીં? આવું કંઈ યાદ નથી? તો ન કીધું તો હવે કહું છું કે ધીર ઇઝ સમથિંગ આપણામાં એક કોમન સેન્સ, એક સેન્સિબિલિટી હોવી બહુ વધારે જરૂરી છે. મને કોઈનું નામ નથી લેવું પર્સનલી, પણ સમથિંગ હેપન ટુડે વિચ આઈ એકચ્યુઅલી ડિન્ટ લાઈક દેટ. જ્યારે સૌરભ સર પોતે એન્ટર થયા, વેન હી વોઝ એન્ટરિંગ, આઈ ડો નોટ વોન્ટ ટુ ટેક ધ નેમ, આઈ એમ ટેલિંગ યુ, બટ સમબડી કમેન્ટેડ કે આવું થોડી હોય કે પહેલાંનું લેક્ચર પહેલાં થઈ ગયું, આમ હોય કાંઈ. સમબડી કમેન્ટેડ. આપણામાં સેન્સિબિલિટી ખરેખર હોવી જોઈએ. યુ હેવ ટુ હેવ ઇટ. કોઈની ડેથ થઈ હતી, હી વોઝ નોટ એકચ્યુઅલી અવેલેબલ ફોર ધ સ્ટેશન, બટ સમહાઉ હી વોન્ટેડ કે મારે બચાવનું બગાડવું નથી, આપણે ડિક્લેર કરી દીધું છે, તો આઈ ટેક ધ સ્ટેશન લિટલ અર્લી એન્ડ આઈ ગો ફોર ધ પછીની જે ઓલી હોય ને બેસણું, એમાં જવાનું હતું. સો હી મેનેજડ સો દેટ તમારું ન બગડે. ગાઈઝ, સેન્સિબિલિટી હેવ ટુ હેવ ઇટ. સિરિયસલી સારા માણસ બનીએ ને એ વધારે જરૂરત છે, પછી આપણે સારા સીએ બની શકશું. થોડુંક 10-15 ગ્રામ બુદ્ધિ અને આપણે કહીએ ને વિવેક, એની જરૂરત હોય જ ઓલવેઝ. 10-15 ગ્રામ છે, આજુ એક્સપેક્ટ નહીં કરીશ, પણ એટલું તો હોવું જ જોઈએ. અને બીજી એક વસ્તુ મેં આની પહેલાં પણ કીધી હતી, લાસ્ટ લેક્ચરમાં ગર્લ્સને જવા દીધી હતી ત્યારે મેં કીધેલું, બોയ്સને બેસાડીને, ઇફ યુ રિમેમ્બર, કે એક વસ્તુ હું ક્લાસમાં ક્યારેય નહીં ચલાવીશ. મારું ટ્રેક રેકોર્ડ બહુ ખરાબ છે, આવું એ મેં કીધું હતું કે હું હર વખત બેચમાંથી 3-4 સ્ટુડન્ટને તો લાત મારીને ભગાડી દઉં છું, કિક આઉટ કરું જ છું. મારા માટે ક્લાસનું ડેકોરમ અટમોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અટમોસ્ટ, યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? ધ મોસ્ટ. અગર કોઈ એડમિન ક્યારેય મને એવું કહેશે કે સર આ ક્લાસમાં ડિસ્ટર્બ કરે છે, એટલે હું પૂછીશ તમને પછી, ફર્સ્ટ આઈ થ્રો યુ આઉટ ઓફ ધ ક્લાસ. મારા માટે ક્લાસનું ડેકોરમ અટમોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અટમોસ્ટ. તમને કંઈ પ્રોબ્લેમ છે, યુ આર ઓલવેઝ વેલકમ. યુ કેન કમ ટુ માય ઓફિસ ડિરેક્ટલી એની ટાઈમ કે સર મને આ પ્રોબ્લેમ થાય છે, મને એડમિન કંઈક હેરાન કરે છે. યુ કેન કમ ટુ મી એની ટાઈમ. બટ અગર મને સામેથી કમ્પ્લેન આવશે ને બોસ, તું ક્યારેય નહીં ચલાવીશ. ડિસિપ્લિન માર્યો, ભણવામાં કંઈ નહીં ઘટી, જવાબદારી મારી. દેટ ઇઝ માય ગેરંટી ટુ યુ કે તમને બેસ્ટમાં બેસ્ટ ક્વોલિટી એજ્યુકેશન તમને અહીંયા મળશે. મને ખબર છે અત્યારે કદાચ એવું થતું સર અકાઉન્ટ્સ અને એલઆરના જ લેક્ચર હમણાં હોય છે. રીઝન ઇઝ સિમ્પલ, તમારી બુક્સ નથી તમારી પાસે. લોના લેક્ચર હું તો હમણાં કાલથી શેડ્યુલ કરી દઈશ, બટ વિધાઉટ બુક્સ ઇટ વુડ બી ટુ ડિફિકલ્ટ ટુ હેન્ડલ ધ સબ્જેક્ટ. સો પર્પઝફુલી એલઆરના સેશન્સ નથી રાખતો. હાવેવર સેટરડે અને મંડેમાં મેં ઇકોનોમિક્સના સેશન્સ રાખેલા છે. પર્પઝફુલી અત્યારે પ્રેક્ટિકલ સબ્જેક્ટ્સ યુ કેન મેનેજ વિધાઉટ ધ બુક્સ. થિયરી સબ્જેક્ટ્સ નહીં થાય. યુ હેવ ટુ અંડરલાઇન, યુ હેવ ટુ હાઇલાઇટ ઇટ. સો તમારી ઇશ્યુઝ તમારા કરતાં હું વધારે સારી રીતે ફીલ કરું છું. રાઈટ? તમારે તો એક જ, તમે તમારા પોતાના એંગલથી જુઓ છો, હું બધાના એંગલથી જોઉં છું. રાઈટ? તમારા રિઝલ્ટની ચિંતા ઓલવેઝ તમારાથી વધારે મને હશે. દેટ યુ રેસ્ટ અશ્યોર્ડ. પરફેક્ટ. જે કંઈ પણ ઇશ્યુ છે, યુ આર ઓલવેઝ વેલકમ, યુ કેન કમ ટુ મી. બટ ક્લાસમાં એ ડેકોરમ મેન્ટેન થવું જ જોઈએ. બીજી વસ્તુ, આજે એક સ્ટુડન્ટે ક્લાસમાં ફોન કાઢ્યો હતો. ભાઈ બે બાજુ કેમેરા છે, સાઉન્ડવાળા કેમેરા છે, બધું જ હું ઓબ્ઝર્વ કરતો હોઉં છું. પ્લીઝ ક્લાસમાં ફોન કાઢવો સ્ટ્રિક્ટલી અલાઉડ નથી. પછી સીઝ કરી લેશે, લઈ લેશે એડમિન, અને પછી તમને પેનલ્ટી લગાડશે તો તમને નહીં ગમશે. સો પ્લીઝ ક્લાસમાં ફોન સ્ટ્રિક્ટલી નહીં કાઢો. સ્ટ્રિક્ટલી સર ટાઈમ જોતો તો નોટ અલાઉડ. ગો આઉટસાઇડ, તારે જે ફોનમાં કરવું છે કર, મને પ્રોબ્લેમ નથી, બટ નોટ વિથ ઇનસાઇડ ધ ક્લાસરૂમ. ભૂલથી પણ ક્લાસમાં ફોન વાગશે તો હું ₹100 પેનલ્ટી ચાર્જ કરીશ. SMS આવ્યો, અલાર્મ વાગ્યો, યુ હેવ ટુ પે ₹100. સો પ્લીઝ એટલું નાનું એન્શ્યોર કરો. હેલ્પ મી ટુ હેલ્પ યુ ઇન અ રાઇટ સેન્સ. મારે ઘણું બધું દેવું છે, ઘણું બધું કહેવું છે, ઘણું બધું આપવું છે તમને, બટ ઇન અ રાઇટ વે. આ લેવલ પર સીએ સ્ટુડન્ટ્સને, આ પ્રોફેશનલ સ્ટુડન્ટ્સને મારે આવું કહેવું પડે ને, મને તો એ પણ નથી ગમતું, ટુ બી વેરી ઓનેસ્ટ. બટ મેં તમને કીધું કે એનાથી તમારા બધાને ફાયદો થશે. આ ડેકોરમ મેન્ટેન થશે તો તમને પોતાને ભણવાની મજા આવશે. करेक्ट? यस. चलिए अकाउंट्स के वर्ल्ड में आ जाते हैं. क्या पढ़ाई किया था बच्चा? अच्छा, डेप्रिसिएशन की मेथड्स अपन ने ऊपर से क्विकली ग्लांस किया था ना. हाँ ना, એ જાગો ગ્રાહક જાગો, ફટાફટ આવી જાવ હવે અકાઉન્ટ્સના વર્લ્ડમાં. શું ભણ્યું તું આપણે? ડેપ્રિસિએશનની મેથડ્સ. અચ્છા, કેટલી મેથડ છે ડેપ્રિસિએશનની? 6 મેથડ્સ. સુપર. હાઉ મેની મેથડ્સ વી હેવ ઓલરેડી સ્ટડીડ? 5 મેથડ્સ વી હેવ સ્ટડીડ.
અચ્છા ઇલિસ્ટ્રેશન સોલ્વ કરવાના બાકી છે આઈ થિંક લખીને સોલ્વ નથી કર્યા બટ ઉપરથી આપણે ડિસ્કસ કર્યા હતા એવું જ હતું ને કંઈક તો સુપર ગ્રેટ હા ચલો આજે આપણે ચેપ્ટરનું ફોર્મલી ઇન્ટ્રોડક્શન કરીએ છીએ સ્ટાર્ટિંગ કરીએ છીએ કંઈક થિયરી પણ ભણીએ છીએ અને લેટ મી જસ્ટ સ્ટાર્ટ વિથ ધ ચેપ્ટર डेप्रिसिएशन व्हाई डू वी चार्ज डेप्रिसिएशन बच्चा पार्टी व्हाई डू वी चार्ज डेप्रिसिएशन कैन समबडी टेल मी क्यों चार्ज करते हो यार ऑब्जेक्टिव क्या है डेप्रिसिएशन चार्ज करने का व्हाई डू यू चार्ज डेप्रिसिएशन चैप्टर से એટલે यस माय फ्रेंड डेप्रिसिएशन શું કામ ચાર્જ કરવો જોઈએ એ ક્વેશ્ચન નથી સોરી डेप्रिसिएशन આપણે વાય ડુ વી ચાર્જ डेप्रिसिएशन ઇઝ અ ક્વેશ્ચન કે શું કામ આપણે બુકમાં એને શો કરીએ છીએ વાય ડુ વી રેકોર્ડ डेप्रिसिएशन માય એક્ઝેક્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ ધેટ વાય વી નીડ ટુ રેકોર્ડ ધ કરેક્ટ અમાઉન્ટ ઓફ डेप्रिसिएशन અગર હું डेप्रिसिएशन રેકોર્ડ નહીં કરીશ તો શું લોચો છે શું પ્રોબ્લેમ છે ઇફ આઈ ડુ નોટ record amount of depreciation or I record amount of depreciation wrongly खोटी अमाउंट लेकी શું લોચો છે બોલો શું ઇશ્યુ છે યસ માય ફ્રેન્ડ ફેર વેલ્યુ ઓફ અસેટ એવું કીધું યસ પરફેક્ટ છે મને મારી અસેટની ટ્રુ વેલ્યુ નહીં મળશે સો ટ્રુ વેલ્યુ નહીં મળશે તો શું થશે મારી સર ફાઇનાન્શિયલ પોઝિશન ખોટી પોર્ટ્રે થશે સાચી ફાઇનાન્શિયલ પોઝિશન નહીં જોવા મળશે સર શું બોલો છો કાંઈ નહીં સમજ પડી ઓકે લેટ મી ટ્રાય ટુ બ્રીફ ધ થિંગ્સ डेप्रिसिएशन ने क्या रेकॉर्ड करो छो क्या रेकॉर्ड करो छो पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड बीजे कहीं बैलेंस शीट असेट नी वेल्यू मांथी माइनस करीने शो करीए छे यस के नो अगर मैं डेप्रिसिएशन ने खोटी अमाउंट कैलक्युलेट करेली छे अथवा बुक्स में रेकॉर्ड ज नथी कर्यो सो एम आई गोइंग टू गेट माय ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस मने साचो प्रॉफिट मळशे के खोटो प्रॉफिट मळशे सो टू गेट द करेक्ट प्रॉफिट आई नीड टू रेकॉर्ड डेप्रिसिएशन यस के नो ओके अगर डेप्रिसिएशन रेकॉर्ड नहीं करे तो मारू फाइनेंशियल पोजीशन फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड आउट करवा माटे આપણે શું બનાવીએ છીએ ટ્રેડિંગ કે પીએનએલ બેલેન્સ શીટ ટુ નો ફાઇનાન્શિયલ પોઝિશન આપણે શું બનાવીએ છીએ બેલેન્સ શીટ તો ફાઇનાન્શિયલ પોઝિશન પણ ગલત પોર્ટ્રે થશે સાચી વાત છે ઓબ્જેક્ટિવ્સ ઓફ પ્રોવાઇડિંગ વોટ डेप्रिसिएशन फर्स्ट इज टू एसर्टेन ट्रू रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन ट्रू रिजल्ट એટલે બિઝનેસ નું રિઝલ્ટ શું તમારું રિઝલ્ટ પાસ કે ફેલ બિઝનેસ નું રિઝલ્ટ એટલે શું પ્રોફિટ કે લોસ प्रॉफिट या तो लॉस आपने खोटो मळशे इफ आई डू नॉट चार्ज डेप्रिसिएशन अप्रोप्रिएटली प्रॉपरली यस यस नो नो ओके ऑब्जेक्टिव ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन क्यों डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं टू प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फाइनेंशियल सही फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए ट्रू एंड फेयर व्यू जानने के लिए यस के नो अच्छा एक बात बताओ यार अगर मैं ना ये मैन्युफैक्चर करता हूं मैं कैलकुलेटर मैन्युफैक्चर करता हूं तो मैंने ना सब एक्सपेंस कंसिडर किया उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करने के वास्ते खाली मटेरियल को कंसीडर नहीं किया एम आई गोइंग टू गेट द करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नो मटेरियल को कंसीडर नहीं किया तो भी चलेगा कि नहीं चलेगा अच्छा सब कंसीडर किया वेजेस जो पे किया ना उसको कंसीडर नहीं किया तो चलेगा क्या नहीं चलेगा अच्छा सब एक्सपेंस कंसीडर किया रेंट कंसीडर नहीं किया प्रीमाइसेस का रेंट भी तो लगेगा फैक्ट्री का रेंट भी तो लगेगा उसको कंसीडर नहीं किया तो क्या मुझे करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा नहीं सब एक्सपेंस को कंसीडर करना पड़ता है क्या तो अगर मैंने डेप्रिसिएशन को कंसीडर नहीं किया तो क्या मुझे करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा नो आई मस्ट चार्ज डेप्रिसिएशन सो दैट मुझे ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिले मैं अगर ये बना रहा हूं तो मुझे ये कितने में पड़ रहा है टू आइडेंटिफाई टू फाइंड आउट आई मस्ट चार्ज व्हाट डेप्रिसिएशन ना कि हाँ अंडरस्टैंडिंग तो पहला रीजन क्या बताया बच्चा क्यों अपन डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं टू एसर्टेन व्हाट ट्रू रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन टू एसर्टेन व्हाट ट्रू रिजल्ट ए हेलो गुड मॉर्निंग जागो छो बुक में है बुक तो हाथ में है ध्यान तो एक बीजे है खोवाई गयो तो सासरे गयो तो हाँ यहाँ ध्यान आप चलो टू एसर्टेन व्हाट ट्रू रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस सेकंड टू प्रेजेंट व्हाट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन सही फाइनेंशियल पोजीशन मिलेगा सर ये नहीं समझ में आया कोई है ऐसा फाइनेंशियल पोजीशन का फंडा नहीं समझ में आया कोई है अच्छा स्टिल मैं बता रहा हूं बैलेंस शीट अपन बनाते हैं बच्चा बैलेंस शीट में मे भी कोई भी एसेट मैंने यहां पे रिकॉर्ड किया होगा मान लेते 10 लाख का है डेप्रिसिएशन चार्ज करना था 1 लाख मैंने चार्ज किया 60,000 10 लाख का एसेट है 1 लाख चार्ज करना चाहिए था मैंने डेप चार्ज कितना किया 60,000
का डेप्रिसिएशन चार्ज किया. सो भी मेरे को इधर बुक वैल्यू कितना दिख रहा है, 9,40,000. बट करेक्ट डेप्रिसिएशन अगर मैंने चार्ज किया होता, अगर मैंने 1 लाख चार्ज किया होता, तो मेरा फाइनेंशियल पोजीशन, मेरा नेटवर्थ अलग दिखता, 9 लाख दिखता. डू यू अग्री? मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? अच्छा, तो ट्रू रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस फाइंड आउट करने के लिए, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के लिए, टू ascertain ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जानने के लिए मुझे सब एक्सपेंसेस को कंसीडर करना होता है. लाइकवाइज आई मस्ट रिकॉर्ड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑल्सो. यस यस, नो नो, नो नो कि यस यस, पक्का पक्का पक्का, सब खर्चे कंसिडरेशन में लेने चाहिए. एंड लास्टली, अपन हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, फेयर इनफ, चलो नो प्रॉब्लम. एक तो ऐसा टाइम आएगा व्हेन असेट विल कम टू एन एंड, असेट का लाइफ खत्म हो जाएगा. असेट का लाइफ खत्म हो जाएगा तो क्या होएगा सर, नया असेट लेना पड़ेगा. एंड इफ यू चार्ज डेप्रिसिएशन रेगुलरली एवरी ईयर, देन आपके पास एक फंड अक्यूमुलेट हो जाता है. इफ यू रिमेंबर, आप ना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नाम का कुछ तो फंडा पड़े हो, यू स्टडीड. अपन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को अक्यूमुलेट करते हैं, प्रोविजन बनाते हैं, हर साल कुछ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एक फंड में अपन अक्यूमुलेट करते हैं, सो दैट अगर 1 साल का 1 लाख, 10 साल का 10 लाख जमा हो गया, when I'll have to buy the new asset, I would have some accumulated funds to reacquire the asset. Yes के no? So there are 4 objectives of providing depreciation. चलो एक एक करके बोलते हैं बेटा सब साथ में. What is the first objective? To ascertain what? True result of operations. याद रहेगा, first one again. To ascertain. Ascertain मतलब find out, to calculate, नक्की करो, decide करो. To ascertain true result of operation. Second, to present true and fair view of financial position. Financial position जानने के लिए अपन क्या बनाते हैं, balance sheet. You understand that? Okay. Third, to accumulate what? Funds for the replacement of assets. And lastly, to ascertain true cost of production. Logical? Everybody convinced? Super. ओके, डेप्रिसिएशन का कुछ तो थियरी है भाई, ये कुछ. अच्छा, इस चैप्टर में से थियरी बहुत ज्यादा काम का नहीं है. ये ऑब्जेक्टिव्स ऑलरेडी अपन ने जो पढ़ा ना, वही इधर डिटेल में भी दिया है. करेक्ट इनकम मेजरमेंट, ट्रू पोजीशन स्टेटमेंट, फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट, एंड असर्टेन व्हाट, द ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिटेल में भी दिया हुआ है. हाउएवर, एक बार ना आईसीएन एग्जाम में पूछ लिया था, विच आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन. विच आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन. फैक्टर्स अफेक्टिंग अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कौन कौन होता है? फैक्टर्स अफेक्टिंग अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, कौन कौन फैक्टर्स? एंड स्टूडेंट्स वर लाइक, सर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछता है आईसीआई. इफ आई टेल यू फैक्टर्स अफेक्टिंग अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कौन है, यू वुड से सर आटलू इजी હતું. આ डेप्रिसिएशन ની ફોર્મ્યુલા છે, હા કે ના? इफ आई चेंज सी, क्या मेरा डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज होएगा? यस. इफ आई चेंज एस, क्या मेरा डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज होएगा? इफ आई चेंज एन, क्या मेरा डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज होएगा? भाई तो कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं डेप्रिसिएशन की वैल्यू को? सी, एस एंड एन, कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू एंड नंबर ऑफ इयर्स. ए हेलो, आउट ऑफ सिलेबस था, आउट ऑफ माइंड था. यस, भाई थोड़ा सा सोचने का 10-15 ग्राम बुद्धि वापरना जरूरी होता है. अच्छा सुनो ना, असेट का कॉस्ट जो होता है ना, कॉस्ट ऑफ असेट, वो एस्टिमेटेड होता है कि एक्चुअल होता है? असेट का कॉस्ट एस्टिमेटेड होता है, अंदाज अटली कॉस्ट लाख से ना ना ना. આપણે એસેટ પરચેસ કરીએ છીએ, વી નો ધ એક્ઝેક્ટ કોસ્ટ ઓફ हमारा असेट का. यस के नो, हिस्टोरिकल होता है, पास्ट में इनकर किया होता है. बट नाउ लिसन ना, ये सब 1 मार्कर में कहीं कहीं पूछ सकते हैं, इसलिए ये अपन डिटेल में जा रहे हैं. यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट, ये क्या होता है? एस्टिमेट होता है. क्या होता है? सॉरी, ये कैसे एस्टिमेट होएगा? आई गिव एन एग्जांपल. बेटा मैं एक फैन परचेस कर रहा हूं, आप फैन परचेस कर रहे हो, पाछड़ जो थिंक कितने साल चलेगा अंदाज से? 5 years. ओके, व्हाट डू यू गेस, कितने साल चलता है एक फैन? 7 વર્ષ. ओके, व्हाट डू यू गेस, पंखो કેટલા વર્ષ ચાલે? 4-5 વર્ષ. ओके से મારા દાદાના જમાનાનો હજી હાલે છે. लाइक सबका अलग अलग एस्टिमेट होएगा. यस के नो? और अकॉर्डिंगली हर एक कंपनी अपने हिसाब से क्या चार्ज करता है? डेप्रिसिएशन. तो डेप्रिसिएशन के लिए यूजफुल लाइफ जो होता है वो कोई प्रिसाइज नहीं होता. आटला वर्ष काम आवશે જ આવશે. एक मशीनरी लीधु, सर 5 વર્ષ આવશે જ આવશે. હું 2 શિફ્ટમાં કામ કરું તો એ 5 વર્ષ આવશે. હું 3 શિફ્ટમાં કામ કરું તો એ 5 વર્ષ આવશે. नो, इट विल चेंज. राइट? समझ में आ रहा है क्या? तो लाइफ जो होता है वो क्या होता है बच्चा? एक्चुअल होता है कि एस्टिमेटेड होता है? स्क्रैप वैल्यू एक्चुअल के एस्टिमेटेड? ये भी एस्टिमेटेड होता है सर. स्क्रैप वैल्यू भी एस्टिमेटेड होता है. हाँ, आज असेट को लिया,
5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, जब भी उसका लाइफ खत्म होएगा, मैं उसको बेचने जाएगा तो अंदाज से मेरे को इतना रुपया मिलेगा। आज थोड़ी प्रिसीजन के साथ, गारंटी के साथ कोई बोल सकता है? नहीं बोल सकता। सर ये क्या होता है? एक्चुअल के एस्टिमेटेड। वन मार्कर में कहीं पे भी पूछा तो समझ में आएगा। यस यस नो नो, सुपर। चलो नाउ आई एम मूविंग ऑन। इलस्ट्रेशन 1 अपन ने लिख के सॉल्व किया था आई गेस। इलस्ट्रेशन 1 तो लिख के सॉल्व कर लिया है ना। वो जनरेटिव्स भी किया था एंड देन जो मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाया था। सेकंड भी हो गया। सेकंड हुआ कि नहीं हुआ, आई एम नॉट श्योर। हो गया, डन। उसमें जनरेटिव्स नहीं बोला था, खाली अपन उनको, मैंने आपको 2 लेजर बनाने बोला था, मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन। हमारे बुक में एक ही दिया था, आई नो इट। हम मैंने आपको दोनों बनाने बोला था, करेक्ट? सुपर, ग्रेट। आई एम टेकिंग यू फर्दर। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा, डेप्रिसिएशन की कितनी मेथड्स अपन ने पढ़ी है? कैन समबडी टेक ऑल द 5 नेम्स? किसी को ऑल द 5 नेम्स याद है? बाई चांस भूल में रह गया, जाने जो नहीं रखो, आई नो इट। यस बेटा, यू टेल मी। SLM फर्स्ट में बता देते हैं, हाँ। सेकंड भी मैं बता दूं, RBM। नाउ यू टेल द नेक्स्ट 3। प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड, डिप्लीशन मेथड, अवर का कुछ था, अवर, मशीन आर मेथड। फिर से एक बार ट्राई करते हैं। यस माय फ्रेंड, यू ट्राई इट। स्ट्रेट लाइन मेथड, ओके ओके। डिप्लीशन मेथड, प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड, परफेक्ट, गो अहेड। मशीन डिप्लीशन, परफेक्ट, ग्रेट। एनीबडी एल्स? कोई और बोलेगा? आई स्टिल वन मोर। गर्ल्स में से कोई और, चलो फटाफट, कौन बोलेगा ऑल द 5 नेम्स? यस अंजलि। प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड, चलो परफेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। तो 2 मेथड के 2 इलस्ट्रेशन तो अपन ने कर लिए। अपन थर्ड के ऊपर जा रहे हैं। इलस्ट्रेशन 3 नहीं, अभी अपन जा रहे हैं विथ इलस्ट्रेशन नंबर 5। कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5। कैन आई स्टार्ट पीपल? ऑल सेट? थोड़ा जागो, लाउड एंड क्लियर। कैन आई स्टार्ट? यस, वो फुल ऑफ एंथुजियाज्म होना यार, एनर्जी होना चाहिए। अपन कुछ नया चालू कर रहे तो यार, यस। चलो आ जाइए। अ मशीन इज परचेज फॉर रुपीज 20 lakhs। 20 लाख कौन है? कॉस्ट, सुपर। इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज 10 years। कितना साल चलेगा? 10 years। विथ अ रेसिडुअल वैल्यू ऑफ 2 लाख। ये रेसिडुअल वैल्यू मतलब स्क्रैप वैल्यू कितना है? 2 lakhs। द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस, ए भाई देख लो वो आ गया। द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 1.5 लाख यूनिट्स। ए कितने यूनिट्स बनेंगे? 1,50,000 यूनिट्स बनेगा। और सर 1 साल में बना लिया तो 1 साल में खत्म हो गया। मशीनरी से आवाज आएगी 1 साल के बाद स्वाहा। सर 5 साल में बनाया तो 5 साल के बाद स्वाहा। मतलब 1.5 लाख यूनिट्स बनेंगे, दैट्स ऑल। उससे ज्यादा बन सकते हैं क्या? नहीं। तो लिमिटिंग फैक्टर क्या है इधर? 10 साल इज अ मेजोरिटी। लिमिटिंग फैक्टर कंस्ट्रेंट है कि 1.5 लाख यूनिट इज अ कंस्ट्रेंट। 1.5 लाख यूनिट इज अ कंस्ट्रेंट। समझ में आएगा क्या कि भाई लिमिट ये है? सर 10 વર્ષ પતી ગયા અને 1.5 લાખ યુનિટ્સ નો બનાવ્યા, આપણે 1,40,000 જ બનાવી શક્યા તો કે ચિંતાની વાત નથી। જેટલી પણ વેલ્યુ બાકી છે આપણે 10મા વર્ષે રાઇટ ઓફ કરી જ દેવી પડશે। लॉजिकल? मैं क्या बोला, समझ में आया क्या? राइट 10 साल के बाद तो अभी उसका लाइफ एनीवेज खत्म हो जाने वाला है। पक्का पक्का पक्का? मैं क्या बोल रहे पल्ले पड़ता है। ओके, मूविंग ऑन। 1.5 लाख यूनिट्स बनने वाले लाइफ टाइम में। एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन इज एज फॉलोज। भाई पहले साल में कितना यूनिट्स बनाया बोलो ना? फर्स्ट ईयर में कितना यूनिट्स बनाया? 20,000 यूनिट्स। सेकेंड ईयर में 20,000। थर्ड ईयर में, सो फर्स्ट ईयर में भी 20,000, सेकेंड ईयर में भी 20,000, थर्ड ईयर में भी 20,000। पक्का क्या? 4, 5, 6, 7 4 साल मैंने 15,000 यूनिट्स, 15,000 यूनिट्स, 15,000 यूनिट्स, 15,000 यूनिट्स कि चारों साल का मिला के 15,000। क्या लिखा है यार वो? पर ईयर, मतलब एवरी ईयर अपन इतने इतने बना रहे हैं। यस के नो? भाई ये गड़बड़ हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है। वो जल्दबाजी में ऐसे पढ़ लेते हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड 3 साल में 20,000 बनाया। ऐसा नहीं है, प्लीज यहां पे ध्यान रखना। जल्दबाजी में ये हो जाता है। तो आवड़े છે, चलो मजा આવી ગઈ પૂછાય તો, પણ ક્વેશ્ચન ને વાંચો માં જરાક મિસ્ટેક થઈ ગઈ તો લોચો પડી જશે। यस यस, चलो देन 8th 9th एंड 10th ईयर 3 साल में कितना यूनिट्स बनाया? 10,000 यूनिट्स पर ईयर। टोटल कितना यूनिट्स बनाया? कैन समबडी हेल्प मी आउट? चलो सब इधर ध्यान दोगे। D इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? C माइनस S अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। नो, इट्स प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड। तो प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड में डिवाइड बाय क्या चेंज हो जाता है? खाली बस प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड।
कितने यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे। मेथड अलग है, एसएलएम नहीं है। ये कौन सा है? प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड। नंबर ऑफ क्या लेना है यहाँ पे? यूनिट्स दैट यू कैन मैन्युफैक्चर। चलो बताओ, सी कितना कंसिडर करूं? स्क्रैप वैल्यू कितना माइनस करूं ना? डिवाइड बाय 1,50,000 units. Everybody, yes? So what is my cost per unit? Depreciation per unit मुझे कितना चार्ज करना चाहिए? Depreciation, therefore depreciation is ₹12 per unit. एक यूनिट बनाने के वास्ते मेरे को 12 रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। डू यू अग्री? अगर मैंने एक ही यूनिट बनाया, बोलो ना कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा? पहले साल में मैंने एक ही यूनिट बनाया तो कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करो? 12 रुपीज। सो सेकंड ईयर में एक भी नहीं बनाया तो नहीं समझा कि समझा? रियल लाइफ में ऐसा ही होता है बच्चा पार्टी। जो साल में ज्यादा ऑर्डर आया उस साल में अपन ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, जो साल में कम ऑर्डर आया उस साल में कम प्रोडक्शन करेंगे। डू यू अग्री? तो डेप्रिसिएशन ₹12 पर यूनिट बन गया। चलो अभी यहां पे ध्यान दीजिएगा, सबका इधर ध्यान चाहिए, मुझे सबका इधर ध्यान चाहिए। तो अपन बात कर रहे ईयर 1 2 3 4 आवड़े છે 5 6 7 6 7 છે ને કે 6 હા 7 અને લાસ્ટલી 8 9 10 सुपर्ब। एंड कितने कितने यूनिट्स बनाए? चलो मेरे को बताओ ना। फर्स्ट ईयर में 20,000 यूनिट्स, इतने भी देर आफ्टर ओके 15,000 अगेन 15,000। क्या बात है, कंसिस्टेंसी है आपका। 15,000 यूनिट्स एंड देर आफ्टर 10,000 यूनिट्स 10,000 यूनिट्स 10,000 यूनिट्स। अच्छा एक बात तो बता, तो विच मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन इज बेटर, एसएलएम और आरबीएम? काइकू आवड़े છે એટલે हाँ वैल्यू जीरो ना था, दैट्स अ गुड थिंग। अरे यार ये मत बोलो, आपने कल बचपन में ये सीखा है वो सही है टू अप टू दैट एक्सटेंट। नहीं यार हर बार बहुत बार बच्चे बोलते हैं सर इसमें ना बुक वैल्यू कभी जीरो नहीं होता, तो ये अच्छी बात है। इज इट अ गुड थिंग? बुक वैल्यू कभी जीरो नहीं होएगा यार, तो डेप्रिसिएशन चार्ज ही मत करना। एक साल कभी मतलब एनीवेज जीरो नहीं होएगा, बुक वैल्यू कभी जीरो नहीं होएगा। दैट इज अ फीचर बट दैट इज नॉट अ गुड फीचर, दैट इज नॉट लाइक वाओ इसलिए ये बेटर है, ऐसा नहीं है। आरबीएम के अंदर बुक वैल्यू कभी जीरो नहीं होता, दैट्स इट्स फीचर, दैट्स इट्स कैरेक्टर, फाइन आई अंडरस्टैंड। बट ऐसा नहीं कि ये उसका एडवांटेज है, उसको गलत मत समझो। बुक वैल्यू जीरो नहीं होगा तो सर लोचा के हम क्या है? अरे बुक वैल्यू जीरो नहीं होगा, बुक में मान लो कुछ तो वैल्यू दिख रहा है, और जब भी आप असेट को बेचोगे तभी आप बुक वैल्यू को सेलिंग प्राइस को कंपेयर करते हो, हाँ कि ना? डू यू अग्री? असेट को बेचा तभी बुक वैल्यू को एंड सेलिंग प्राइस को कंपेयर करना होता है। मैं क्या बोलता है समझ में आता है? प्रॉफिट हुआ कि लॉस डिटरमाइन करने के वास्ते, राइट? तो अगर बुक वैल्यू जीरो ही नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो वैल्यू दिखेगा ही दिखेगा, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा। सर प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा तो अच्छी बात है। मैंने कल भी एक चीज समझाया था, प्रॉफिट होना और दिखना दो अलग अलग चीजें है भाई। बैंक में જેટલા પૈસા છે એટલા આવવાના જ છે, પણ વધારે પ્રોફિટ દેખાશે તો વધારે ટેક્સ ભરવો પડશે। હવે સીએ ના એંગલથી વિચારો ભાઈ, प्रॉफिट होवो અને દેખાવો બે अलग वस्तु છે। प्रॉफिट है पैसा तो जितना आएगा, सेल जितने में क्या उतना पैसा आएगा। डू यू अग्री? अरे हाँ के ना? तो बुक वैल्यू जीरो नहीं होना दैट इज नॉट एन एडवांटेज, प्लीज एक बात ध्यान से समझो, ये है ना? यस ओके, तो दैट इज नॉट अ बेनिफिट। तो क्या और क्या रीजन है व्हाई यू से आरबीएम इज बेटर? लॉजिकल क्या लॉजिक था माय फ्रेंड? परफेक्ट, इट इज बेस्ड ऑन द यूसेज आउटपुट प्रोडक्शन ऑफ द असेट। सर क्या मतलब? एसएलएम मेथड बोलता है यार हमारे पास एक ऐसी मशीनरी है जो हर साल बराबर यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी, मतलब पहले साल में भी 10,000 यूनिट्स का आउटपुट आया, दूसरे साल भी 10,000 यूनिट्स का आउटपुट, 10वें साल भी 10,000 यूनिट्स का आउटपुट। बट रियल लाइफ में क्या मशीनरी ऐसे फंक्शन करती है? रियल लाइफ में क्या मशीनरीज ऐसे फंक्शन करती है? नहीं सर, रियल लाइफ में तो क्या होता है, स्टार्टिंग में जब एसेट नई है ना तो ज्यादा प्रोडक्शन देगी, धीरे धीरे पुरानी होती जाएगी, तब वैसे वैसे प्रोडक्शन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। एंड दैट इज द रीजन रियल लाइफ में रिड्यूसिंग बैलेंस को ज्यादा भाव मिलता है, ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है, बिकॉज रियल लाइफ में असेट नहीं है, ज्यादा प्रोडक्शन है, इनिशियल में ज्यादा डेप्रिसिएशन, असेट पुरानी होती जाएगी, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी रिड्यूसिंग। लॉजिकल हाँ कि ना एवरीबॉडी? इससे पहले एग्जाम में आया भी था, एक क्वेश्चन पूछा भी था कि विच मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन इज बेटर कंसीडरिंग द एक्सपेंसेस टू बी इनकर्ड। क्या बोला? कंसीडरिंग द expenses, repair expenses to be incurred.
नाउ स्टूडेंट्स वर लाइक अगेन आउट ऑफ सिलेबस, अगेन आउट ऑफ सिलेबस नहीं है बच्चा, लॉजिक समझो, उसमें भी आरबीएम इज बेटर। क्यों? रिपेयर के खर्चे के कंटेक्स्ट में पूछा ना, रिपेयर के कंटेक्स्ट एक्सपेंस के कंटेक्स्ट में। तो एसएलएम में क्या होएगा अभी समझना ध्यान से। एसएलएम में क्या होता है ध्यान से समझिएगा, एवरी ईयर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम, आके ना, एंड रिपेयर एक्सपेंसेस विल बी इंक्रीजिंग। अरे बोलो ना, स्टार्टिंग में नो रिपेयर, देन रिपेयर का खर्चा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ज्यादा पूरा ना होएगा उतना रिपेयर का खर्चा ज्यादा आएगा, हा के ना। सो कहीं ना कहीं ओवरऑल बर्डन ऑन द पीएनएल विल बी इंक्रीजिंग। मैं क्या बोलता है समझ में आता है? फिर से सो डेप्रिसिएशन 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 एवरी ईयर 10,000 का डेप्रिसिएशन चल रहा है, बट रिपेयर एक्सपेंसेस इनिशियली कुछ नहीं लग रहा था, देन 1,000 देन 2,000 देन 3,000 देन 4,000 देन 5,000, सो ओवरऑल बर्डन ऑन पीएनएल इज समवेयर इंक्रीजिंग, हाँ के ना। बट कंसिडरिंग द रिपेयर एक्सपेंसेस आरबीएम में सोचता है, नाउ क्या होएगा सर, आरबीएम में डेप्रिसिएशन स्टार्टिंग में ज्यादा, देन धीरे धीरे क्या होएगा, कम, डेप्रिसिएशन इज रिड्यूसिंग, हाँ कि ना, एंड रिपेयर एक्सपेंसेस इज इंक्रीजिंग। सो कहीं ना कहीं क्या होता है मालूम, ओवरऑल एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूं बट ऑलमोस्ट ओवरऑल बर्डन ऑन द पीएनएल रिमेन सेम। पीएनएल के ऊपर रिपेयर डेप्रिसिएशन कम होता जाएगा और रिपेयर बढ़ता जाएगा, सो ऑलमोस्ट ओवरऑल बर्डन क्या होता है, सेम रहता है पीएनएल के ऊपर। समझ में आता है कि ऊपर से गया तोड़ा तोड़ा, समझा है? ऐसे क्वेश्चंस भी अपन थियरी में है, हमारी जेकेसी बुक्स आपके पास आएगी तो आपको मिलेगा, थियरी में ये सब क्वेश्चंस दिया है, विल स्टडी दैट। चलो अभी के लिए इतना पल्ले पड़ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है थियरी में भी। चलो सुपर, चलो मुझे यूनिट्स मैंने समझा दिया, यूनिट्स योर यूनिट्स। अभी मेरे को चाहिए डेप्रिसिएशन, कैन यू हेल्प मी आउट? कितना डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में चार्ज करेंगे, सेकंड ईयर में चार्ज करेंगे? फर्स्ट ईयर में सर 20,000 यूनिट्स, और पर ईयर का कितना डेप्रिसिएशन आपने बताया, ₹12। कितना हो गया, 2,40,000। तो सेकंड ईयर में भी सेम 20,000 यूनिट्स है क्या, दैट शुड बी 2,40,000। थर्ड ईयर में भी, ये सबको समझ में आता है? ऑब्वियसली यार, अगर फर्स्ट ईयर में 20,000 यूनिट्स के लिए 2,40,000 बन रहा तो सेकंड एंड थर्ड में भी वही बनेगा ना यार। क्या लिख के बताऊं? यू कैन कैलकुलेट अगेन इफ यू फील। 1,80,000 दसो यस के नो, इट शुड बी सेम 1,80,000। Okay. Everybody's understanding? One था anyone? Doubt के clear. All set पक्का? Superb. 10,000 into 12 rupees 12. कितना डेप? 1,20,000. Again same and same. 1,20,000 1,20,000. There should be amount of depreciation. People yes के no? अच्छा, ये 12 रुपीज को मैं क्या बोल सकता है, व्हाट इज 12 रुपीज ईयर, दैट इज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, है ना? 12 रुपया पर यूनिट डेप्रिसिएशन का रेट हुआ, एक यूनिट का 12 रुपए इज माई रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। एंड 2,40,000 को मैं क्या बोल सकते हैं, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। नहीं समझ में आ रहा है क्या आ रहा है? अच्छा, इसको एग्जाम में कैसे लिखने का, अच्छे कपड़े पहनाने का, अच्छा ऐसा फॉर्मेट बना के चकाचक लिखने का ना यार। मैं क्या बोलता है समझ में आता है, होप एंड प्रे। इसका जरा टोटल में लगाओ ना, कितना यूनिट्स हो रहा है टोटल यूनिट्स 1,50,000 यूनिट्स। ओके, एंड ये हो रहा है आपका पक्का? क्या चेक किया क्या यार? बुद्धि लगाड़ो तो यार जाए 9 रुपीज 12 करना को तो ये थे जाए होई तो बुद्धि वापरी शकाय, होई तो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। ए भाई इजी था, समझा सबको? छापा जाए, ये छाप लिया, बाकी छापो। स्टार्ट द जेरोक्स मशीन। कौन सा मेथड का नाम भी लिखेगा ऊपर, प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड। सुने सोचा बर्थडे आज हैं, पार्टी लाइक इट, हैप्पी बर्थडे। केला वर्ष पूरा केरा, बाय दे।
कौन सा मेथड भाई? मेथड का नाम क्या था? प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड. लिमिटिंग फैक्टर किस में दिया होता है? नंबर ऑफ यूनिट्स में. इजी इजी, सुपर. यार बुक में ना प्रेजेंटेशन थोड़ा अलग किया होता है तो अपन को समझ में आया, इसलिए मैंने आपको सिंप्लीफाइड वे में दिया है. बुक में ऐसे दिया है 1 2 3 240 180 120, बस बात खत्म. इतना शॉर्ट एंड स्वीट. अब चाहो तो ऐसे भी करो, आई डोंट माइंड, बट दिस लुक्स बेटर. ये थोड़ा सेंसिबल लगता है, पेपर चेकर को मार्क्स देने का मन करता है, राइट? ए भाई थोड़ा हम फॉर्मेट बोर्मेट बनाओ ना, कपड़ा પહેરાવો ને. આમ હારું ન લાગે, પોતે હારા મારા પહેરશે. और वो फॉर्मेट पेंसिल से बनता है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन. જેની પાસે પેન્સિલ હોય ને આમ છુપાડીને લખે કે સરને દેખાય ન જાય, તો એ દેખાય બકા. बट एक चीज आई मस्ट क्लैरिफाई गाइस, अगर ना प्लीज ब्रिंग योर स्केल इरेजर, ये सब साथ में रखेगा. इफ आई चेक द फॉर्मेट, कभी चेक किया और अगर सही नहीं रहेगा तो आई टीयर द पेज में पेज फाड़ देगा. आई एम वेरी क्लियर ऑन टू इट. मुझे नहीं चाहिए वो गंदा वाला प्रेजेंटेशन में नहीं चलाएगा. आई एम वेरी सीरियस ऑन टू इट. अगर मैंने चेक किया और कोई कोई बच्चे को ना सर रफ बुक है भाई, रफ बुक में केवी नोट लेके चाहिए, सारू प्रेजेंटेशन अलाउड नहीं आमा. प्लीज यार ये एक्सक्यूज मेरे को कभी मत देना. ये रफ बुक है इसलिए गंदा प्रेजेंटेशन है. I'm never going to take that. चलो हो गया अभी. लिख रहे पब्लिक यार. एक ही बार लिखने का, घर पे जाके करो रिवीजन. हो गया, समझ में भी आया. नाइस. ओके ओके ओके. आप लोगों को मैंने बुक्स दिखा दिया, राइट? आपके पास बुक्स है अभी? यू हैव द बुक्स? नहीं है? है यार, बताया था कल कैसे एक्सेस करने का, यार भूल गए. तो जब तक बुक नहीं आती है यू मस्ट स्टार्ट स्टडिंग. आई एम सीरियस यार. आई नो द सम स्टूडेंट्स ऑफ योर बैच जिन्होंने एलआर का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया था. दे हैड बीन डिस्कसिंग डाउट्स विद द फैकल्टीज यस्टरडे ओनली. सो आई वुड सजेस्ट यू वन थिंग यार, थोड़ा आगे भागना है सीरियसली. अगर कुछ बड़ा सोच रहे हो ना यार, तो राइट वे ऑफ स्टडी बताऊं. यू डोंट फील कि आनंद से तो प्रवचन જ આપે છે, बट यार वो एक्सपीरियंस है. आई टेल यू सीए को क्रैक करना इतना डिफिकल्ट नहीं, अगर राइट मैनर ऑफ स्टडी फॉलो होता है ना तो. एंड व्हाट इज द राइट मैनर ऑफ स्टडी? एक चीज़ आप अग्री करोगे कि अगर कोई भी चीज़ ना पहली बार करते ना तो थोड़ा वो नेगेटिविटी होता है, वो माइंड उसको जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता, अडॉप्ट नहीं करता. कोई भी चीज़ पहली बार कर रहे हो. पहली बार जब भी फेसबुक चला ना तभी भी डर लग रहा था. पहली बार इंस्टाग्राम में भी वी आर अनकंफर्टेबल. अभी तो एक्सपर्टीज आ गई है, बट पहली बार साइकिल चलाई होगी, बाइक चलाई होगी, यू वर अनकंफर्टेबल. होता था किसी से पहली बार बात करना? हाँ होता है. तो पहली बार इज ऑलवेज लाइक थोड़ा सा डिफिकल्ट थिंग. नाउ आई टेल यू, तो स्टडी में भी ऐसा होता है. अगर मैंने पहली बार आपको ये मेथड पढ़ाया, कल अपन ने जब भी पहली बार किया ना तभी एक पैसिमिज्म था, यार पता नहीं क्या बोल रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं, लिख भी नहीं रहे, समझ में आएगा कि नहीं आएगा. बट नाउ जब भी अपन दूसरी बार करें तो अरे हाँ तो आवड़े. तो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, राइट वे ऑफ स्टडी क्या है मालूम है? फॉर एग्जाम्पल अपन ने ये टॉपिक पढ़ा, मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो उसके अंदर के जितने भी क्वेश्चंस है ना वो आइडियली आपको अपने आप ट्राई करने चाहिए बिफोर द लेक्चर. बिफोर द लेक्चर, आई एम सीरियस. નાવ યુ બુડ રહેવું તમે કોઈ દિવસ ભણ્યું જ નથી એટલે તો આપણે ક્યારે રેન્ક આવી જ નથી. બટ સાચું વે ઓફ સ્ટડી એ છે कि यू शुड ट्राई इट ऑन योर ओन, एंड देर आफ्टर ट्राई करने के बाद आपको मालूम है सर ये 5 क्वेश्चन मेरे से नहीं हुए ना, वो 5 क्वेश्चन जब भी चलेंगे ना क्लास में डिस्कस होंगे, एट दैट टाइम यू वुड बी एक्स्ट्रा कॉन्शियस. आपको मालूम यार मेरे को ये 5 जगह पे ही प्रॉब्लम है,
अगर उसको अच्छे से टैकल कर लिया तो पूरा चैप्टर मेरी पॉकेट में है। तो यू वुड बी एक्स्ट्रा कॉन्शियस, और उसके बाद अगर घर पे जाके गलती से रिवाइज किया बॉस, वो परमानेंटली याद रह जाएगा। एग्जाम के दिन डायरेक्टली रिवाइज करो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई नेवर डिड रिवीजन, मैंने कभी रिवीजन किया ही नहीं है। एग्जाम के दिन पे सिलेबस खत्म हो गया, बहुत है, सच्ची बोल रहा हूं। यू माइट फील आओ तो क्यों हुई, बट आई एम सीरियस, मैंने कभी रिवीजन नहीं किया। बट आई बिलीव वन थिंग, अगर आपका विजन बहुत स्ट्रांग है ना, मुझे इतना मालूम है कि मैंने जो पढ़ा है ना, वो रात को कोई नींद से भी जगा गया ना तो भी मैं उसको प्रेजेंट कर पाएगा, लिख पाएगा। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ाई करो भाई, सीए में कोई और प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। बट यार वो रट्टाफाई करने का कोशिश किया बॉस, तो थिंग्स वुड बी डिफरेंट, राइट। ट्राई कीजिएगा कि टॉपिक आपको डिस्कस किया गया ना, उसके रिलेटेड क्वेश्चन अपने आप ट्राई करो। 2 दिन ट्राई करो खाली, मैं परमानेंटली नहीं बोल रहा, चलो 2 दिन में अगर आपको फील होता है ना यार कुछ फर्क लग रहा है, तो इसको फॉलो कीजिएगा। खाली 2 दिन ट्राई करो, जो टॉपिक हमने डिस्कस किया उसको अपने आप घर पे जाके सॉल्व कर लो, लिख लो, ऑरली सॉल्व करो, फाइन। बट आपको मालूम होगा कि ये 5 क्वेश्चन मेरे को नहीं आया, जब वो क्वेश्चन चलेंगे ना, यू वुड बी एक्स्ट्रा केयरफुल। और फिर वो अनकंफर्टेबल वाला पार्ट चला गया, अभी दूसरी बार हो रहा है, पहली बार नहीं हो रहा है। क्लास में जब भी चलेगा यू वुड बी कॉन्फिडेंट इनफ, यू वुड बी आंसरिंग द सम्स, और वो कॉन्फिडेंस स्काई हाई होता है। लास्ट टू लास्ट बैच में देयर वर 4 स्टूडेंट्स फ्रॉम मोदी स्कूल्स, 2 को 99.99 पीआर था 12th में, 2 को 99.98 पीआर था। चारों के चारों एक बेंच में ही पढ़ते थे, खास बेस्ट फ्रेंड्स। फर्स्ट अटेम्प्ट में फाउंडेशन क्लियर किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटर क्लियर किया, एंड दे वर लाइक बस आज टेक्निक फॉलो करता। मैं क्लास में कंसेप्ट पढ़ाए हुए, मैं भी क्वेश्चन कराया फॉर एग्जाम्पल, दूसरे दिन पे आके वो लोग सर बाकी ना बता समझे क्या 4 डाउट्स है, दे वर रेडी विद द डाउट्स, दे डिड वंडरफुल, ट्रस्ट मी। આ રાઈટ મેથડ છે, ફોલો કરી શકાય તો ઇટ વુડ બી ઇમેન્સલી હેલ્પફુલ। ક્યારેક ટ્રાય કરજો, 2 દિવસ માટે ટ્રાય કરી જોજો। आई एम मूविंग ऑन, चलो इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा, पहले 4 पे चले, 4 भी तो बाकी है ना, कि हो गया, चलो 4 पे चलते हैं। कौन सा मेथड, मशीन आर मेथड। ए यार आवर बोलो कि आर बोलो, आपको जो मर्जी पड़े बोलो यार, वो हमेशा वो रहने वाला है, डाटा डेटा, यस चलो इट इज बेटा नॉट रिक्वायर्ड। पहले वो क्वेश्चन में भी रिक्वायर्ड नहीं था, इसमें पूछा ही नहीं है, इसमें खाली कैलकुलेट करने ही बोला है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन, दैट्स ऑल। बस आपको आवड़ गया ना, काफी है। फिर वो लेजर हर बार नहीं बनाने का, लेजर वाले क्वेश्चंस आगे आएंगे। बाय द वे 6 मेथड्स पढ़ लिया, चैप्टर खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। अभी तो ये वो इंट्रोडक्शन खेल रहे हैं, वो छप या कर रहे हैं, पानी में उतरना तो बाकी है। अभी ये डेप्रिसिएशन अपने कलर्स, ट्रू कलर्स दिखाएगा, रुको, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हाँ अभी आते, अभी ऐसा लगेगा कि आवड़ गया, बट रुको तो सही, है ना, ज्यादा कॉन्फिडेंट मत हो जाना। अच्छा ये अभी धंधे पे ध्यान देते हैं। अ मशीन वाज परचेज फॉर 30 lakhs, इलेक्शन 4 ना, 4 machine R method. A machine was purchased for rupees 30 lakh, having an estimated total working of how many hours? 24,000 hours. The scrap value is expected to be rupees how much? 2 lakhs. An anticipated pattern of distribution of effective hours is as follows. So first year, second year, third year. How many hours? 3,000 hours per year. 4, 5, 6. 2,600 hours per year, and lastly 7, 8, 9, 10, 1,800 hours per year. Hey, will you try this question? सेम टू सेम। हाँ मतलब मेरे को क्या चाहिए, चलो मैं थोड़ा सा इनिशिएट करके दे देता हूँ। फर्स्ट अच्छा मेथड का नाम क्या, मशीन आर मेथड। कितने गया, ओके। डेप्रिसिएशन कैसे होना है, इधर डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू सी माइनस एस। सी कितना, सी कितना है चेक करो ना, 30 lakhs। स्क्रैप वैल्यू कितना, 2 lakhs। और नंबर ऑफ आवर्स कितना है, सी कितना, बोलती नहीं है पब्लिक, 30 lakh। स्क्रैप वैल्यू कितना, डिवाइड बाय 24,000 व्हाट आवर्स। फॉर्मूला क्या यूज किया है पीपल, डी इज इक्वल टू सी माइनस एस डिवाइड बाय नंबर ऑफ आवर्स। पीपल यस क्या, नहीं समझा कि समझा, नाइस, सुपर। सो नाउ डिप्रेशन की कैलकुलेशन की अपन बात कर, 30 lakhs माइनस 2 lakhs तो कितना हो गया, 28 lakhs डिवाइड बाय 24,000,
116.66666666 और यहाँ पे ना लोचा पड़ा था, डाउट लग रहा था बहुत सारे लोगों को, हमने M+ से किया था, M+ मेमोरी को यूज करके। आज मैं कुछ एक और शॉर्टकट भी सिखाऊंगा, पर बताया ध्यान आप जो तो मस्त वाला शॉर्टकट सिखवाड़ीश, मजा आवे जैसे। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, देयरफॉर डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 116.66666666 रुपीज पर आवर। अरे हाँ के ना, मैं सर इसमें ऐसा क्या कर रहे हो, 116 राउंड ऑफ कर लो या तो 117 राउंड ऑफ कर लो। भाई लोचा पड़ेगा यार, ये रेट है, ये अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं है, दिस इज रेट पर आवर। इसको राउंड ऑफ किया ना तो 24,000 आवर्स तक इसके छेड़े अड़ेंगे। कनेक्शन से है भाई, लोचा पड़ेगा, 24 आवर्स तक इसकी इंपैक्ट होएगी, हाँ के ना। तो यार ये रेट को ना राउंड ऑफ नहीं करने का, तो सर पूरा लेना पड़ेगा। सुनो, आई गिव यू द वे आउट, इजी वे आउट। एक इजी ट्रिक देता हूं, वो M+ वाले ट्रिक्स में ना आई रियलाइज कि कुछ बच्चों को फिर भी दिक्कत हो रही थी, तो एक और इजी ट्रिक देता हूं, सुनो। भाई कैलकुलेटर चलाना सिखा रहा हूं, सुनो बेशरम पापियो। आपको मालूम है कैलकुलेटर के पास दिमाग होता है, आपके पास भी, ऐसा अज्यूम कर ही रहा हूं यार। कैलकुलेटर, अच्छा एक ट्रिक सिखाता हूं, सुनो। अगर मैंने कैलकुलेटर को बोल के रखा, भाई मैं जो भी फिगर बोलेगा ना उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे। कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 3 से। फॉर एग्जाम्पल मैंने फिगर दिया 2, तो 2 इंटू 3 आप कितना बोलोगे? 2 इंटू 3 6, थोड़ा लाउड इंग्लिश सबको सुनाई दे। 2 इंटू 3 5, 5 इंटू 3 10, गुड मॉर्निंग 4। यार आप तो सुना है, ऐसा नहीं करने का कैलकुलेटर का यूज करने का। मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट, तो कैलकुलेटर ये, जैसे अपन ने इन सबको बोला था कि 3 से मल्टीप्लाई करते जाओ, तो कैलकुलेटर को भी आप ऐसे कमांड दे सकते हो। व्हाट आई वांट टू टेल यू, हाउ यू कैन डू इट। आपने 3 दबाया, देन मल्टीप्लाई 2 बार, इक्वल टू सॉरी मल्टीप्लाई 2 बार दबाया, देन एक बार दबाओ 3, फिर से करो सॉरी 3 मल्टीप्लाई 2 बार दबाया। नाउ आप जो भी उसको कमांड दोगे ना, लाइक 1 इक्वल टू 3, 2 इक्वल टू, तो 3 इंटू 2 हो गया 6, 5 इक्वल टू 15 हो रहा है, 8 इक्वल टू 24। तो ये कर क्या रहा है, 3 को पकड़ के रखा है। आप जो भी फिगर दे रहे हो उसको वो 3 से मल्टीप्लाई करके दे देगा। फिर से कराऊं एक और बार, वन मोर टाइम। चलो इस बार अपन ना 5 पकड़ के रखने को बोलता है। अपन उसको बोलेंगे कि भाई मैं तेरे को जो भी फिगर देगा तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करके दे। समझ में आ रहा है क्या? तो मैं क्या करेगा, 5 दबाया, मल्टीप्लाई 2 बार दबाने का, तो 2 बार दबाने का मतलब उसने उस फिगर को क्या कर दिया, लॉक कर दिया, फ्रीज कर दिया। यस, 2 बार इक्वल मल्टीप्लाई दबाया। अभी आप कोई भी फिगर प्रेस करोगे, 3 इक्वल टू, तो 5 इंटू 3 15 हो गया, 8 इक्वल टू 8 5 जा 40, 9 इक्वल टू 5 9 जा 45, लाइक दैट। तो फ्रीज क्या करके रखा है, 5। मालूम था ये ट्रिक? नहीं। चलो ग्रेट। तो अभी अपन को क्या करना है, अभी भाई एकदम इजी हो गया ना, आपको समझ में आया मैं क्या करने वाला है? डिड यू गेट दैट? सुनो मैं क्या करने वाला है अभी। तो आपको ना ये जो पूरा का पूरा फिगर था 30 lakhs माइनस 2 lakhs डिवाइड बाय 24,000, अभी कितना आ रहा है 116.6666, ये रेट है, इसको आपको राउंड ऑफ अगर नहीं करना है, पूरा का पूरा फिगर चाहिए, इस फिगर को मल्टीप्लाई करना है विथ 3000 आवर्स, 2600 आवर्स, 800 आवर्स, आके ना। तो कितना इजी हो गया, क्या करूं मैं, बोलो ना। अभी इसको क्या करूं, 2 बार मल्टीप्लाई दबा दिया, नाउ ये फिगर लॉक हो गया। नाउ काम अपना हो गया यार, 3000 इक्वल टू, काम खत्म, 3,49,999, तो कितना करने का, 3,50,000, 2600 इक्वल टू 3,03,033.33 आ रहा है। तो आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हो, ये अमाउंट है, इसको राउंड ऑफ कर सकते हो। एंड लास्टली 1800 इक्वल टू, एंड व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज 2,10,000। इजी। हाथों पाड़ो बेशरम पापियों राक्षसों, सुपर, छापो फटाफट। नाउ यू सॉल्व द क्वेश्चन एंटायरली। करना क्या, ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे और उसके बाद your units, अच्छा यूनिट्स नहीं, आर सॉरी, एंड डेप्रिसिएशन। कितना साल है भाई, 1 2 3 4 5 6 7, 4 5 6 है, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेटा जी इफ यू अंडरस्टैंड ना, पर्पसफुली मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ सो दैट यू कैन कंसीडर के बुक में कैसे दिखना चाहिए, प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए।
आप बहुत अच्छे से उसको समझ पाओगे. यहाँ पे मैंने बीच में एक लाइन भी छोड़ा सो दैट यू अंडरस्टैंड कि भाई चेंज हो रहा है. एग्जैक्टली ऐसे ही आप अपनी बुक में छापिएगा, है ना. चलो नंबर 1, ईयर 1 में कितना 3000 आवर्स. 3000 3000 3000. उसके बाद 2600 20 इतना ही था ना. एंड लास्टली 1800 आवर्स. ओके. कैसे लिखने का भाई बता देता हूं. 3000 इंटू 116.66666666. अच्छा कभी भी ऐसा एग्जाम में ऐसा हो जाएगा तो ये शॉर्टकट तो काम आएगा. और अदरवाइज ना पॉइंट के बाद एटलीस्ट 4 डिजिट कंसिडर करो. पॉइंट के बाद 4 डिजिट कंसिडर करो, है ना. तो अगेन यू आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर. बट 2 डिजिट किया ना तो लोचा पड़ेगा. डिड यू गेट दैट. चलो कितना लिखो मैं 2 लाख सॉरी कितना आ रहा था यहां पे 3,50,000 3,49,999 आ रहा था. 3,50,000 कर रहा हूं. सेम 3,50,000. ए भाई सब मेरे साथ हो क्या. अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग. डोन लिख के हो गया कि लिखा हुआ है. अब भी लिखा. क्या बात है. आई डू ट्रस्ट यू यार. તે કહી દીધું એમાં આવી ગયું यार. 2,10,000 नहीं કેટલા હતા અહીંયા 3,03,333. સર પણ લોચો નહીં પડે. પડશે यार સાચી વાત છે. તો અહીંયા 4 કરી નાખો. नहीं समझा क्या किया. 0.33 आ रहा था ना यार तो एक जगह पे 4 कर दिया. हाँ कि ना. एंड 1800 इंटू 116.6666 इज इक्वल टू 2,10,000. टोटल लगाओ जरा कितने आवर्स यूज किया 24,000. एंड कितना व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन. Hey guys, what is your depreciable amount here in this case? Depreciable amount क्या था. Depreciable amount पूछ रहा हूं. What is your depreciable amount here in this question. Question को देखो. Depreciable amount किसको बोलते हो. C minus S is your depreciable amount. सर इसको डेप्रिसिएबल काय को बोलते हैं बेटा. 30 लाख का एसेट लिया 2 लाख तो एनीवेज मेरे को वापस मिल ही जाएगा एज अ स्क्रैप वैल्यू. सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन दैट आई नीड टू चार्ज टू पीएनएल दैट इज 28 lakhs डेप्रिसिएबल अमाउंट. तो कभी कभी बच्चा पार्टी आपकी बुक में एक आध जगह पे ऐसा भी लिखा है तो कंफ्यूज नहीं हो जाओगे. डी इज इक्वल टू डेप्रिसिएबल अमाउंट डिवाइड बाय एन. तो एक ही बात हुई है. वो डेप्रिसिएबल अमाउंट डिवाइड बाय एन बोलो कि सी माइनस एस डिवाइड बाय एन बोलो. वन एंड द सेम थिंग ना कि हाँ. पक्कू पक्कू पक्कू. सुपर. चलिए नाउ इसको कपड़े पहनाना बाकी है. કેટલું ફાઇન થયેલા લાગે है ना. पेपर चेक करने पूरा मार्क्स देवा ज पड़े. करेक्ट. बाय द वे काउंस में एक बात कहूं खोटे खोटे आवा क्वेश्चन नो पूछाई. आवा क्वेश्चन पूछाશે નહીં. આ તો આપણે મેથડ્સ લર્ન કરી રહ્યા છે. પૂછાશે હવે આ ચાલુ થશે. हेलो 4th डन 5th डन 6th તમે કરો यार. आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनीथिंग आउट ऑफ इट. मैं कहीं જ નથી કહેવાનો. यू सॉल्व इट एंटायरली. मुझे कुछ भी नहीं बताना. मेथड का नाम क्या. डिप्लीशन मेथड. किसके लिए थे. माइंस एंड क्वेरीज के लिए. याद आया क्या. इससे पहले फिल इन द ब्लैंक में भी आया हुआ है. दिस मेथड इज सुटेबल फॉर माइंस एंड क्वेरीज. मैसेज सूर्या एंड कंपनी. यू सॉल्व इट.
हो रहा है कि हो गया? अभी तो चालू किया है। बोलो, D इज इक्वल टू सी माइनस एस अपॉन एन। यार अभी भी बहुत सारे बच्चे ना ब्लू इंक से लिख रहे हैं, शायद मैंने बता दिया है ब्लू इंक अलाउड नहीं होता सी एग्जाम्स में, स्ट्रिक्टली ब्लैक इंक। चलो डी कितना बनने वाला है? 1 करोड़। स्क्रैप वैल्यू कुछ नहीं दिया, 0 डिवाइड बाय एन, एन मतलब 2 लाख टन। कितना होएगा? देयरफॉर डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ₹50 पर टन। ये एग्जांपल है डिप्लीशन मेथड का। इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है? 6 कि 5? 6। डी इज इक्वल टू ₹50 पर टन। चलो कौन से दो अकाउंट चाहिए? क्वेरी लीज अकाउंट। सर क्वेरी लीज अकाउंट क्या होता है बेटा? असेट है, असेट अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट इन शॉर्ट। अरे हाके ना। सर मार्जिन को यूज कर सकते हैं? कैन वी यूज द मार्जिन? नो, स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। वो थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा यार। अलाउड नहीं होता तो नहीं होता। 12th में अलाउड था क्या? नहीं ना। था? था नहीं, यहां पे नहीं है। चलिए पीपल, क्वेरी लीज अकाउंट। डेट, particulars, अमाउंट। डेट, डेट कितने गया? गैप हो गया। डेट का कॉलम ही रह गया। डेट, particulars, amount, depreciation account। चलिए, हो गया आप लोगों का कि हो रहा है? हो गया। लेट अस जस्ट चेक द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। 2 लाख इंटू 50 कितना हो रहा है? फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 2000 इंटू 50 1 लाख। 10,000 इंटू 50 5 lakhs and 15,000 इंटू 50। ये क्या मिला आपको? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो अपन को क्या बनाना है? लेजर बनाना है। दो अकाउंट चाहिए, क्वेरी लीज अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अच्छा, असेट कब लिया आपने? ये लीज कब लिया? 1 जनवरी 2019 में। हेलो हेलो, हाँ यस ओके, 1 जनवरी 19। क्वेरी लीज अकाउंट डेबिट टू व्हाट? बैंक अकाउंट। असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट इज 1 खोखा ना के हा। ओके, उसके बाद एट द एंड ऑफ द ईयर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। एट द एंड ऑफ द ईयर एंट्री शुड बी 31/12/19 का एंट्री। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू
टू क्या क्वेरी लीज कितना 1 लाख ना ओके 31/12/19 by depreciation account it should be 1 lakh हाँ confusion check है बाई बैलेंस सीडी कितना 99 लैक्स एक गाइस एक बात बताओ ना क्या एसएलएम के अंदर एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ बुक वैल्यू 0 हो जाता है आई रिपीट माई क्वेश्चन एसएलएम मेथड में एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ क्या बुक वैल्यू 0 हो जाता है नो के यस नो नहीं होता होता है 1 लाख का असेट एसएलएम मेथड हर साल 10,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है 10 साल के लिए मैंने 10,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ कितना हो जाएगा 0 नहीं समझा क्यों हाँ बेटा आरबीएम માં ના પાડી હતી એસએલએમ માં થાય એસએલએમ માં થાય yes it can be equal to either 0 or equal to scrap value ये क्या बोला इक्वल टू कितना हो सकता है स्क्रैप वैल्यू के जितना होएगा या तो 0 होएगा एसएलएम के अंदर बट आरबीएम में इट कैन नेवर बिकम 0 याद आ रहा है क्या कैलकुलेटर में अपन ने ट्राई किया था एक बार किया था यस 99 लाख बचा इधर बोलो ना ये डेप्रिसिएशन किधर ट्रांसफर करोगे बाय पीएनएल अकाउंट ये एंट्री क्या पास किया ये आपने ये एंट्री क्या पास हुआ टेल मी ना प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट ऐसा ही था ना ग्रेट टोटल 1 लाख चलो अभी बताओ जल्दी से मेरे को बताओ कितना बैलेंस है डेप्रिसिएशन अकाउंट में 1 लाख 0 यस ना यार पीएनएल में तो ट्रांसफर हो गया ना यार अभी 0 पक्का क्या सुपर ग्रेट देयर आफ्टर अभी सेकेंड ईयर में आ जाओ सेकेंड ईयर के अंदर 1/1/20 टू बैलेंस बीडी बाडी नहीं बीडी 99 lakhs चलिए यस तो 31/12/20 का डेप तो डेप पहले डेबिट में रिकॉर्ड करो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 31/12/20 को डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्वेरी लीज अकाउंट एंड क्वेरी लीज अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ये बोलो जी सबको समझता है कितना अमाउंट का डेप्रिसिएशन था 5 lakhs सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना था 5 lakhs ओके ठीक है 99 lakhs इधर टोटल 99 lakhs 5 lakhs गया कितना बचा बाय बैलेंस सीडी कितना 94 है जी यस अच्छा ये सर्कल बना रहा हूं उसका क्या मतलब मैंने ना 90 लाख के ऊपर भी सर्कल बनाया 94 के ऊपर भी सर्कल बनाया दिस इज अ बैलेंसिंग फिगर हाँ बैलेंसिंग फिगर है आई मीन 99 lakhs लिया 5 लाख का डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो 94 लाख इज अ सर्कल का मतलब होएगा हमेशा इट्स अ बैलेंसिंग फिगर यस 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 इतना ही बुक वैल्यू बन रहा है सही बात है 1/1/21 to balance BD how much 94 okay 31/12/2021 का डेप्रिसिएशन पहले पीएनएल में चार्ज करने का अरे इधर तो लिखना भी बाकी 5 lakhs था उसको पीएनएल में ट्रांसफर करोगे 31/12/20 को बाय पीएनएल अकाउंट एंट्री क्या हुआ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप इट शुड बी 5 lakhs सबको समझ में आविंग ए भाई genuinely on a serious note anybody any doubt so far anyone with any doubt anybody yes my friend
6 મહિનાનો ભાઈ 3 વર્ષમાં 6 મહિનાનું ડેપ્રિસિએશન બોલે છે કે સમજાણું જ નહીં. कहा सु काम क्यों ऐसा बोल रहे हो? मैंने 1 जनवरी को एसेट परचेस किया तो पूरा साल दिसंबर तक यूज कर रहे हैं, पूरे साल का डेप्रिसिएशन लग रहा है. 6 महीना किधर हुआ बच्चा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. मुझे नहीं, शायद मैं आपका डाउट नहीं समझ रहा हूं. ऐसा हो रहा है? टेल मी योर डाउट प्रॉपर्ली बताओ बेटा. जान्युआरी में परचेस करो, डिसेम्बर ईयर एंडिंग છે, ડિસેમ્બર કે 6 મહિના કેવી રીતે થાય? શું કે છે? ખબર પડે? પડી ગઈ. ઓછા ક્યાં લીધા છે? નાનકડી અમાઉન્ટ આવી, લાખમાં આવી, ઓલી કરોડમાંથી લાખમાં આવી એટલે ના રે ના, એવું નથી. આ તો હેરાન કરમાં. ભગવાન જાણે. હાલો આગળ વધીએ. હાલો 31/12/21 डेप्रिसिएशन डेबिट साइड. 31/12/21 टू क्वेरी लीज अकाउंट कितना? 7,50,000 एंड 7,50,000 का दूसरा इफेक्ट बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. ए डबल इफेक्ट समझ में आ रहा है ना? 7,50,000 बाय बैलेंस सीडी कितना बचेगा? 83,50,000 86,50,000. ठीक है. 94 लाख टोटल. ए भाई एवरीबॉडी यस, सुपर. इधर भी 31/12/21 बाय P&L अकाउंट हाउ मच? 7,50,000. यार एक छोटा सा डाउट मेरे को आया, आपको तो वैसे अलाउड नहीं है ना? हाँ आई नो इट. 1/1/22 टू बैलेंस बीडी. एक छोटा सा डाउट मेरे को है, मैं पूछूं क्या? आप लोग आंसर करोगे सच्ची सच्ची? यार बुक वैल्यू इसमें 0 हुआ कि नहीं हुआ? बुक वैल्यू, सो कैन आई से डिप्लीशन मेथड में कभी भी बुक वैल्यू 0 नहीं होता? यस के नो? आके ना नक्की करो यार, તમે લોકો બહુ यार. इफ यू कैन कन्विंस देम, कंफ्यूज देम. कुछ भी बोल रही है पब्लिक. होता है कि नहीं होता है? बुक वैल्यू 0 हो जाएगा कि नहीं होएगा? बोथ वाओ जो તમે क्यों ही राखे खबर नहीं कहीं. તમે કીધું હા, તમે કીધું ના. થાય કે નો થાય? થાય. नहीं होएगा? होएगा यार. हाँ मेरे को नहीं कर लेगा. होता है कि नहीं होता? होता है. व्हाट डू यू गेस? होता है. लास्ट बेंच में था डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू 0 થઈ જાય? થાય આ વાળી મેથડ બ્રો डिप्लीशन में થઈ જાય? अरे यार वही चीज आएगा ना यार. देखो ना असेट का टोटल कितना टन एक्सट्रैक्ट कर सकते थे? 2 लाख टन. क्या आपने 2 लाख टन एक्सट्रैक्ट कर लिया इधर? ना रे ना, खाली 2,000 10,000 15,000. हजी कितना टन एक्सट्रैक्ट કર્યા? खाली 27,000 टन एक्सट्रैक्ट કર્યા. હજી તો બહુ બધું બાકી છે ભાઈ एक्सट्रैक्ट કરવાનું. લાઈફ પૂરી થઈ ગઈ અસેટ ની? ના यार હજી પૂરી નથી થઈ. આપણે તો પહેલા 3 વર્ષનું ખાલી ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ બનાવ્યું એટલા માટે. ક્લિયર છે? વાંધા કે નો વાંધા? चकाचक क्लियर? तो भाई अभी ना कुछ तूफानी करता है. सुनो अभी एक लास्ट वाला मेथड बाकी है. मेथड का नाम क्या है? कुछ अलग नाम है, सुनो ना. सम ऑफ योर्स, ये गलत है, प्रिंटिंग मिस्टेक है. सम ऑफ योर्स डिजिट्स मेथड है. सम ऑफ योर्स डिजिट्स मेथड. क्या मेथड का नाम है? सम ऑफ योर्स डिजिट्स. सर ये नाम ही वियर्ड है एकदम. अरे क्या इजी है, मुझे चिंता करवा चाहिए नहीं. लिसन, सुनो अभी इधर ध्यान चाहिए. कुछ नहीं लिखने विखने का नहीं, इधर ध्यान दो. कौन सा मेथड ट्राई कर रहे हैं अपन? ए जवाब आपको फटाफट. योर्स डिजिट्स मेथड. भाई योर है कि योर्स है? डिजिट है कि डिजिट्स है?
समझ में आता है ना? नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. सम मतलब क्या? टोटल. यस. अच्छा, डेप्रिसिएशन इधर कैसे चार्ज करेंगे भाई? सबका इधर ध्यान चाहिएगा. थोड़ा सा अगर ये समझ में आ गया ना तो मजा आएगा, बट अदरवाइज अगर ये अभी समझ में नहीं आया ना तो लास्ट मोमेंट तक गोल गोल घूमिंग एंड घूमिंग एंड घूमिंग, फिर पल्ले नहीं पड़ेगा, है ना? तो सब ध्यान दो. अगर असेट का लाइफ मैंने कंसिडर किया, लाइफ इज 10 years फॉर एग्जाम्पल, कितना लाइफ कंसिडर किया? जब भी मेरे को अगर फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन चाहिए, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन में कैलकुलेट करना चाहता है, तो फॉर्मूला क्या है मालूम है? डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला कुछ ऐसा दिया हुआ है, D इज इक्वल टू C. अच्छा नहीं, यहां पे अच्छे से स्पेस में लिख के दे रहा हूं, यहां पे अच्छे से लिख के दे रहा हूं. D इज इक्वल टू C माइनस S इनटू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ. क्या बोला? फिर से एक बार, इनटू क्या बोला? बट इंक्लूडिंग, ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग CY है, इंक्लूडिंग करंट ईयर, डिवाइड बाय मेथड का नाम सम ऑफ યર્સ digits. પાછી મેથડ નો લખવાનો હોય ભાઈ સાહેબ, કાંઈ સમજાણો नहीं. आई नो इट, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा. चलो ध्यान दो. अगर मेरे को फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन चाहिए, क्या चाहिए? फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन चाहिए, तो यार सी तो क्वेश्चन में दिया होगा वही लेंगे, एस भी मिल जाएगा. नया कुछ क्या है? रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है सर. અસેટની લાઈફ કેટલા યર્સ આપણે અઝ્યુમ કરી છે? 10 years. ફર્સ્ટ યરનો डेप्रिसिएशन चार्ज करो છું, फर्स्ट ईयर के एंड में अपन डेप्रिसिएशन चार्ज करने जा रहे हैं, तो लाइफ कितना बचा होगा? रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितना? 9 years, बट इंक्लूडिंग करंट ईयर, तो इट शुड बी 10. हाँ के ना? डिवाइड बाय क्या करना है सर? सम ऑफ योर्स डिजिट. सम मतलब टोटल, 1 to 10 का टोटल, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10 कितना होएगा? भाई कैलकुलेटर यूज करना अलाउड है, कोई बात नहीं, आप कर सकते हो, और दिमाग तो बिल्कुल अलाउड है. इट इज समवट लाइक वेटेड एवरेज दैट यू कैलकुलेटेड सो फार. आपने वेट असाइन कर दिया 10, 9, 8, 7, 6, लाइक वेटेड एवरेज के जैसे होएगा ये. अभी समझ में आ रहा है? समवट लाइक दैट. मैं एक्जैक्टली वेटेड एवरेज वर्ड यूज नहीं कर सकता, बट ये डेप्रिसिएशन का मेथड है सम ऑफ योर्स डिजिट्स मेथड. सम ऑफ, अगर मेरे को सर सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन चाहिए तो क्या करने का? बोलो ना. C माइनस एस इंटू 9 डिवाइड बाय 55. इजी हो गया ये? पक्का क्या? मेरे को थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन चाहिए, D इज इक्वल टू C माइनस एस इंटू 7, नहीं नहीं ना, इंक्लूडिंग करंट ईयर, तो 8 डिवाइड बाय 55. ये समझ में आ रहा है कि सबको भी? इजी जी. थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन चाहिए, C माइनस एस इंटू 8 डिवाइड बाय, पक्का क्या? कंफ्यूजन के क्लियर है ये? पक्का? मेरे को डाउट है, मैं चेक करूं क्या? अनदर एग्जांपल ले रहा हूं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं. now ध्यान दो. अगर आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है, एक प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ तो मान लो असेट का लाइफ रखते हैं 20 लाख, 10 लाख, कॉस्ट इज 10 lakhs, देन लाइफ इज 5 years. मेरे को डेप्रिसिएशन चाहिए फॉर द थर्ड ईयर, डेप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर चाहिए. स्क्रैप वैल्यू कुछ नहीं बोले तो कितना लोगे? 0 ना के? हाँ बोलो कितना होएगा? ट्राई. पॉइंट में आवे ज? खोटो ज. अच्छा, आई गिव द वे आउट. क्यों ये लोचा पड़ रहा है? आप ना लिख के नहीं करो, लिख के करोगे ना तो अच्छा होएगा. वो कैलकुलेटर में ना वो थोड़ा आड़स आवता है ना, तो लोचा पड़ जाता है. सुनो, नाउ डेप्रिसिएशन चाहिए तो भाई डेप्रिसिएशन फॉर द थर्ड ईयर, थर्ड ईयर का डेप चाहिए ना. D इज इक्वल टू C माइनस एस, तो 10 lakhs ही हुआ क्या? इनटू
थर्ड ईयर का लाइफ, टोटल 5 इयर्स का लाइफ है, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूं, रिमेनिंग लाइफ कितना 2, नहीं ना इंक्लूडिंग करंट ईयर 3 डिवाइड बाय 1 to 5 का टोटल 1 + 2 + 3 + 4 + 5, चेक इट आउट कितना हो रहा है, इट शुड बी 2 lakhs। ये सबको समझा क्या, ऊपर से गया, समझा, पक्कू पक्कू पक्कू। अजय एक ट्राई करिए, अब थोड़ा कॉन्फिडेंस हाउस आई गेस, चलो अजय एक ट्राई करिए। कॉस्ट ले लेते हैं 21 lakhs, अच्छा 22 lakhs बस તમારા જેવો કોણ થાય, 22 lakhs, then scrap value 1 lakh, then life 7 years, tell me depreciation for 5th year, come on try। शाबाश, सबका अलग अलग आ रहा है, वाह वाह वाह। के हो यार, इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं यार, 4 ही ऑप्शन होते हैं। सुनो 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 सुनो, D इज इक्वल टू कौन से साल का डेप्रिसिएशन, 5th ईयर का, 5th ईयर का डेप चाहिए ना, C - S कितना लिखूं 21 lakhs इनटू 5th ईयर का डेप्रिसिएशन चाहिए, टोटल लाइफ इज 7 years, सो 5th ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करो तो 2 years रिमेनिंग लाइफ, ना 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 इंक्लूडिंग करंट ईयर 3 डिवाइड बाय 1 to 7 का टोटल 28 ना, 1 to 7 का टोटल 2,25,000। समझ में आया कि बाउंसर गया, ऑल क्लियर, पक्का पक्का पक्का। चलो अभी सी एग्जाम्स में क्या डिफिकल्टी आती है, सी एग्जाम लोगों को टफ क्यों लगता है, पेपर बहुत लेंदी था सर, ऐसा बार बार लोग बोलते हैं, आई टेल यू क्यों लगता है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन देखो, चलो आ जाओ सब मेरे साथ रहो, आई टेल यू द रियल रीजन लोगों को सी एग्जाम टफ क्यों लगता है। सुनो, मेसर्स आकाश एंड कंपनी परचेज द मशीन फॉर ₹10 lakhs, तो 10 lakhs क्या है आपका कॉस्ट, estimated useful life and scrap value were 10 years and 1,20,000 respectively, तो estimated useful life is 10 years, scrap value is 1,20,000 respectively, yes के नो, कि उल्टा है, लाइफ 1,20,000 and scrap value 10 years। Hello, the machine was put to use on 1/1/2017, मशीन का परचेज डेट भी दे दिया, कब है 1/1/2017। Now please pay attention, इधर क्या पूछा है, show machine account and depreciation account in their books for now I tell you बच्चे करते हैं क्या, QC एग्जाम अपने आप डिफिकल्ट हो गया। सुनो अगरा क्यों लगता है, सामड़ो 2022 का पूछा तो बच्चे बहुत होशियार होते हैं, अरे सर ये तो आवड़ता है, एंड दे स्टार्ट सॉल्विंग इट धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। वो 2017 का अकाउंट बनाएगा, 2018 का बनाएगा, 19 का बनाएगा, 20 का बनाएगा, 21 का फाइनली कहां पे पहुंच पाएगा 22। भाई ये पूछा ही नहीं है, डायरेक्टली 22 का अकाउंट ही पूछा है, तो आपको 22 का ही बनाना है। आप फालतू में 5 साल का एक्स्ट्रा अकाउंट बना के लेके आते हो, देन उसे पेपर बहुत लेंदी हो, तो ये होता है। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, पूछा क्या है स्पेसिफिकली 22 का अकाउंट ही पूछा ना, तो 5 साल का क्यों फ्री में बना के दे रहे हो उसको। आई अंडरस्टैंडिंग, अपन को सिर्फ और सिर्फ 22 का अकाउंट बनाना है। आई नो 11 12th में कभी ऐसा नहीं होता था, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का ही अपन तो अकाउंट बनाते थे, इधर उड़ी मारना है, थोड़ा जंप करना है, डायरेक्टली कौन से साल का अकाउंट चाहिए 2022 का। हो पाएगा यार, इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो क्या करेंगे, सुनो ना, बताओ ना मेरे को, आप बताओ, चलो हाउ वी कैन कैलकुलेट दैट, कैसे मिलेगा। પેલા 5 વર્ષનો જે डेप्रिसिएशन છે, छठा વર્ષનો अकाउंट જોઈએ, यू अंडरस्टैंड दैट, 6th ईयर का अकाउंट चाहिए। सो कैसे हुआ 17 18 19 20 21, ये 5 साल के बाद का अकाउंट चाहिए मेरे को, तो 5 साल में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, आई हैव टू कैलकुलेट दैट। डू यू अग्री? क्या नो यार, 5 साल का डेप्रिसिएशन मिलेगा तब तो जाके मेरे को छठे साल का 2 बैलेंस बीडी में करेगा,
वो फर्स्ट ईयर से, मेरे को फर्स्ट डे से चालू करना है ना, 1/1/22 से चालू करना है। ये जागो ग्राहक जागो, गजब बात है यार। सुनो अभी सब ध्यान दो भाई, कोई कुछ लिखेगा विखेगा नहीं, जस्ट बी हियर, बहुत मजा आने वाला है, कुछ और इंटरेस्टिंग शॉर्टकट्स कमिंग योर वे, यहां पे ध्यान दो। चलो नाउ 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 क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा चल रहा है अपना? सोच रही है पब्लिक यार, जागो ना यार। कौन सा इलस्ट्रेशन? 3। डी इज इक्वल टू, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन चाहिए मेरे को, तो डी इज इक्वल टू सी माइनस एस। सी कितना था मालूम नहीं, कितना था? स्क्रैप वैल्यू कितना? तो 10 लाख माइनस 120 कितना हो गया? करना यार, कितना हो गया? 8,80,000 पक्का क्या? तो इधर जितने भी जगह पे सी माइनस एस, सी माइनस एस, सी माइनस एस दिख रहा है, इफ यू डोंट माइंड में वहां पे 880 लिखेगा तो चलेगा क्या? ना ना सर हम थोड़ी हाल है, अरे यार भावनाओं को समझो, चलेगा? तो मैं पूरा का पूरा लिख रहा हूं, फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन भी चाहिएगा और फिफ्थ ईयर का भी चाहिएगा। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू सी माइनस एस इंटू कितना बाय कितना? 7/55। ओके परफेक्ट। फिफ्थ ईयर का डेप्रिसिएशन जब भी चाहिएगा तभी क्या करेंगे अपन? डी इज इक्वल टू C minus S into remaining useful life. So 6 years. ना including current year. Sorry, fifth year चल रहा है. Remaining useful life is 5 years. ना including current year. तो कितना बनना चाहिए? 6/55. In short, easy बताऊं क्या? +1 कर लेने का है ना? हम एज करिए क्यों? हाँ मन का बच। ए हाके ना, अभी सबका इधर ध्यान चाहिए मेरे को, सुनो ना, कोई लिखेगा नहीं, ध्यान दो खाली। C minus S कितना? 8,80,000। ये मानता है क्या किसी को? 8,80,000। अभी कैलकुलेट मत करो, सुनो पहले मेरे को एक बार पुटअप करने दो। 8,80,000, खाली ध्यान दो बेटा, सिर्फ ध्यान दो, ट्रस्ट में कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ कवर हो जाएगा, खाली मेरे को अच्छे से सुन लो। 8,80,000 हाँ के ना? सर नहीं मेरे को ऐसा नहीं, दिल पे ना बहुत पत्थर रखे में ऐसा लिख रहा है, मेरे को तो वो पूरा लिखना है, 10 लाख माइनस 120 ऐसा ही लिखना है। हाँ पे तो એવું રીતે લખો, કઈ વાંધો નથી, આન્સર સही મજા આવશે। अरे हाँ के ना? मैं थोड़ा टाइम बचाने के वास्ते ऐसा कर रहा है, तो ऐसा कोई दिक्कत का बात नहीं है। आपने अगर 10 लाख माइनस 120 लिखा तो भी अल्टीमेटली वही होने वाला है, 8,80,000। नाउ यू टेल मी, चलो ये डेप्रिसिएशन कितना बना? कैलकुलेट एंड टेल मी कितना? 1,60,000। अच्छू पक्कू? चेक करो चेक करो चेक करो, आवे आવું કંઈક પક્કુ? तो सेकेंड ईयर में 1,44,000, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, नेक्स्ट ईयर। ए भाई लॉजिक चलाओ ना, कितना? 16 कम हो रहा है एवरी ईयर। टेबल पर नहीं करवा अपने भाई, ये आमे न था आवड़तो, रेवा दे नहीं यार ना। सुनो इतना तो हो गया, मैं पूछ रहा हूं ना, उसका ध्यान से बहुत केयरफुली जवाब दीजिएगा। व्हाट इज योर डेप्रिसिएशन फॉर द सेकेंड ईयर? व्हाट इज योर डेप्रिसिएशन फॉर द फोर्थ ईयर? व्हाट इज योर डेप्रिसिएशन फॉर द फिफ्थ ईयर? व्हाट इज योर डेप्रिसिएशन फॉर 5 years? क्या बोला भाई? फर्क होता है, सुनो ना मैं क्या बोल रहा हूं। डेप्रिसिएशन फॉर फिफ्थ ईयर अलग होता है एंड डेप्रिसिएशन फॉर 5 years अलग होता है। ये तो दिमाग चलता है कि नहीं चलता? बोलो फिफ्थ ईयर का डेप कितना मिला आपको? लेकिन इफ आई आस्क यू व्हाट इज योर डेप्रिसिएशन फॉर 5 years, टोटल कर लो। 6 लाख। इजी था क्या? बहुत भारी था कि समझ में आया? आया? ए वांदा किसी को क्या? अब एक बात बताऊं, इतना मेहनत नहीं करने का, वो मेहनत नहीं करવાની, દિમાગ ચલાવવાનું। જો સરસ મજાનો શોર્ટકટ આપું છું, મજા આવશે, બધાનું ધ્યાન અહીંયા કંઈક મેજિક થવાનું છે। गेट रेडी, टाइटन योर सीट बेल्ट। 8,80,000, 5 साल का डेप्रिसिएशन चाहिए ना, तो 5 है तो इधर भी सुनो ना, ये इधर 10 था, इधर 9 था, 8 7 एंड, तो देखो ना मैं क्या कर रहा है मालूम? 10 + 9 + 8 + 7 + 6 डिवाइड बाय, चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो।
आइला सेम टू सेम मैजिक. यस, क्या लॉजिक यार, कोई मैजिक नहीं है. अप्लाई सम कॉमन सेंस विच इज नॉट कॉमन. सब में वैसा जरूरी नहीं है. ए भाई समझा क्या? यहां तक का स्टोरी एकदम चकाचक क्लियर. पक्का 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 100%. नाउ अपन को 22 का अकाउंट चाहिए, मतलब 6th ईयर का अकाउंट चाहिए. हाँ के ना? तो कैसे करने का, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. अभी तो बहुत इजी हो गया. ए कैन समबडी टेल मी बीवी आफ्टर 5 years? सर आओ आओ, अचानक कुछ है. गुड मॉर्निंग मुंबई. यार बीवी कौन था? हाँ मतलब हाउ मच इट इज? कॉस्ट माइनस टोटल डेप. तो कॉस्ट कितना, टोटल डेप कितना 5 साल का? तो 10 minus 640. बीवी आफ्टर 5 years. बीवी आफ्टर 5 years 3,60,000. ए भाई सुनो ना, मतलब आफ्टर 5 years मतलब कौन सी डेट की बात कर रहे हो? 2017 खत्म हुआ, 2018, 19, 20, 2021 के एंड में, 5 साल के बाद 31 दिसंबर 2021 के एंड में, 31 दिसंबर 2021 के एंड में ये बीवी है. हाँ के ना? बोलो ना यार. नहीं समझा, नहीं समझा तो अगर नहीं समझता है ना, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो उसका भी वे आउट बताता हूं, कोई दिक्कत नहीं. आप ऐसे करो, अगर कंफ्यूजन हो जाता है तो 10 लाख माइनस 160 कितना आएगा? 10 लाख माइनस 160 एंड 144. 10 लाख माइनस 160 माइनस 144 माइनस 128. 10 लाख माइनस 160 144 128 112. 10 लाख माइनस ऑल दिस ईयर, तो अल्टीमेटली आपको 360 मिलेगा. अगर कंफ्यूजन होती है तो यू कैन ट्राई इट, तो आपको कॉन्फिडेंस समझ में आ जाएगा. एक बार कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ गया देन यू कैन प्ले विथ इट. यस, यहां तक का स्टोरी समझ में आया है. बीवी क्या होता था बच्चा? कॉस्ट माइनस टोटल डेप. तो कॉस्ट इज 10 लाख, टोटल डेप सो फार इज 640. सो बीवी एज ऑन 1/1/22 इज 360. यस के नो? सब ऊपर से गया है ना, कोई दिक्कत नहीं. चलो अपन लिख के कर रहा है. बेटा जिसको ऊपर से गए ना, आई टेल यू समथिंग, मैंने लिखा ना आप दिस माइनस दिस करो, दिस माइनस दिस करो, वो थोड़ा सा काम करो ना, बाय द टाइम आई मेक द फॉर्मेट. हाँ वो तो आता है, तो क्या नहीं आता है? 2021 का बीवी तक तो पहुंचेंगे, फिर 2022 में जाएंगे, एंट्री मारेंगे ना यार. વર્ષની શરૂઆતથી અકાઉન્ટ बनवाવાનું છે ને, એટલા માટે. तो मेरे को अकाउंट चाहिए, लेकिन कौन सी डेट से चाहिए सुनो ना. मेरे को अकाउंट चाहिए 1/1/22 से. तो 5 साल का डेप्रिसिएशन माइनस किया, 6ठे साल का इधर अकाउंट के अंदर बिठाएंगे. यार શું કરું? 2017, 18, 19, 20, 21 આ 5 વર્ષનો ડેપ્રિસિએશન માઇનસ કરીએ તો મને પેલી જાન્યુઆરી 2022 ની બેલેન્સ મળે. 22 ની બુક વેલ્યુ મળી 22. हेलो हेलो, अभी जागता है पब्लिक. सुनो अभी 1/1/22 पे पहुंच गए. टू बैलेंस बॉडी कितना? 3,60,000. कंफ्यूजन के क्लियर? क्लियर नहीं, ऐसा क्लियर हुआ सबको? नाउ लिसन लिसन लिसन. 31/12/22 का डेप कितना? बाई डेप. कैसे मिलेगा? अरे यार वही चपना है यार, क्या टेंशन काई को लेने का? बोलो इधर अपना. D इज इक्वल टू C माइनस S 880 इंटू. सो 6ठे साल का डेप्रिसिएशन चाहिए. यस, रिमेनिंग लाइफ इज 4 years. नहीं नहीं नहीं, 5/55. ये बोलो जी कितना? कैलकुलेटर वापरवाना छूट છે ને, દિમાગ પણ. 8,80,000 इंटू 5/55 कितना हुआ? 80,000. लखी दो. 6th ईयर का डेप्रिसिएशन
C माइनस S 880 इंटू क्या 4 years ना 5/55 पक्का क्या तो 80,000 आ रहा होगा चेक करो बस तो हो गया ना काम यार बाय डैप कितना करेगा 80,000 एंड काम तो इजी हो गया यार खत्म हो गया स्टोरी बस यही तो चाहिए था 360 इतने भी 360 क्या डिफिकल्ट था कि समझ में आया ऐसा लग तो रहा है कि समझ में आया फिर मालूम नहीं है ना बाय बैलेंस सीडी क्या पूछा है क्वेश्चन में 1 ही साल का पूछा है कि 2 साल का पूछा है बस ओए ओए लियो आ तो पती गયું 280 डेप्रिसिएशन अकाउंट 80 बात पूरी ओए ओए હતું કઈ સમજ में આવ્યું છે આ ખાલી લખી લેજો મેં તમને આખું સમજાવી દીધું છે ટ્રાય કરજો 4 મિનિટ છે અત્યારે લખવાનું નથી કહેતો કે લખી લેશો ફટાફટ લખી લ્યો હાલો કામ પૂરું થાય હાલો લખી લ્યો કામ પૂરું થાય હાલો છાપો વાંધો નહીં 2 મિનિટ થાય અમે 7:30 સુધી તો છે ઓફિશિયલી મારી પાસે 7:30 સુધી છે ને એવું છે ओह आई एम सॉरी यार मेरे को दिमाग से निकल गया था आई थॉट 7:30 तक सेशन है सॉरी तो भागो जल्दी अभी तक क्यों बैठे हो आई एम सॉरी यार इट्स कीप्ड आउट ऑफ माइंड मुझे लगा 7:30 तक लेक्चर काले બધું કાલે હવે બેગ કાલે પેક કરજો હવે ભાગો જલ્દી यार क्यारेक એવું થાય તો સિરિયસલી હોનો સિરિયસ ક્યારેક કહી દેવાનું મારું ધ્યાન ક્યારેક આવું બની જાય રેરલી કે ધ્યાન ના રહે મારા મગજમાં 7:30 નો લેક્ચર હતો તો ક્યારેક somebody can bring the it to my notice ચલો ભાગો બાય બાય